After observing the current situation and environment of the world, Vivek College Bijnor has decided to organize a webinar on the topic of paradigm shift in professional education in post-COVID world. We are very fortunate that today we are accompanied by an eminent professor, Dr. Vivek Sharma, Director, Mascot Institutes of Management, Bareilly, to explain and enlighten us on this topic. I humbly request to Professor Dr. Sharma, please guide us on this issue. Dr. Sharma, please proceed. Thank you, Sarvesh. Am I audible to the audience? Thank you, sir. I think I am audible. Very good afternoon to one and all present in the webinar organized by Vivek College of Management and Technology, or I can say Vivek Group of Institutions. For this, I congratulate the Honorable Managing Committee members of Vivek Group of Institutions. The topic that they have chosen is very pertinent from the viewpoint of this Corona crisis, which is on the way, and it is going to be here in the next coming times also. At the very outset, let me thank Dr. Sarvesh Kumar Sheetalji, who has kindly invited to me for this particular seminar. I should say webinar. I am told that directors, the principals, the faculty members, and various students of Vivek College of Law and various participants from across the nation are participating. I would like to start the discussion. Change is inevitable in the world, and sometimes the change is very fast. Changing the face does not help, but facing the change does. This webinar is an attempt to face the change taking place in the world of education. The topic, as I introduced, is the paradigm shift in professional education in the post-COVID world. We all are very much aware that the COVID word is that word which has been recently coined. This COVID is coronavirus disease. I have segregated my presentation into three parts. Part one talks of the introduction. So I'll just share my screen. It'll take a minute. I think the screen is very much visible, Sarvesh ji. Sarvesh ji, the screen is visible, na? Yes, sir, this is visible. Okay. So I'll say this paradigm shift in professional education in post-COVID world. The topic today, the chosen is paradigm shift in professional education in post-COVID world, which I have segregated into three parts. Part one talks of the introduction. Part two talks of the paradigm shift in professional education that is taking place. And part three talks of the personal action plan. Let me introduce about the first part, which is about education and its aims. It's professional education, teaching learning process, tools used for delivering knowledge, 21st century teaching learning process, journey from industry 4 to education 4, paradigm shift in industry, VUCA basics, challenges to the workforce, and education 4 for industry 4. At the very first, I would like to start my discussion with the quote by Albert Einstein, which is, education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. That's a very pertinent quote which describes the education in a well-defined manner. When I'm talking of this particular quote, I say that whatever we have internalized, that is what exactly education is. So education is what remains after one has forgotten everything learned in school. The next slide talks of Shiksha Ki Atmakatha. Shiksha Ki Atmakatha says that
there has been a renowned Acharya Kala Kalelkar, who was a very renowned educationist, who said in शिक्षा की आत्मकथा, शिक्षा कहती है मैं सत्ता की दासी नहीं हूँ, कानून की किंकरी नहीं हूँ, विज्ञान की सखी नहीं हूँ, कला की प्रतिहारी नहीं हूँ, अर्थशास्त्र की बागी नहीं हूँ, मैं तो धर्म का पुनरागमन हूँ, मनुष्य के बुद्धि, हृदय एवं सर्व इंद्रियों की स्वामिनी हूँ। मानस शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे दो चरण हैं, कला और कारीगरी मेरे हाथ हैं, विज्ञान मेरा मस्तिष्क है, धर्म मेरा हृदय है, निरीक्षण और तर्क मेरी आंखें हैं, इतिहास मेरे कान हैं, स्वातंत्र मेरा श्वास है, उत्साह और उद्योग मेरे फेफड़े हैं, धैर्य मेरा व्रत है, श्रद्धा मेरा चैतन्य है। मैं ऐसी जगदम्बा हूँ, मेरा उपासक कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, उसकी सभी कामनाएं मेरी कृपा से तृप्त हो जाएगी। So in the light of this definition of education, my discussion follows as under. The basic aims of education. As we all know, that the basic purpose of education and training is to empower an individual to lead a successful life and contribute best for him or her, family, society, nation, and to the humanity. अभी हम जो ये सिनेरियो देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मानवता के प्रति खतरा आ गया है। हम मानवता को बचाएंगे, हम अपने परिवार को बचाएंगे, हम अपनी सोसाइटी को बचाएंगे, हम अपने राष्ट्र को बचाएंगे। इस तरीके का परम ध्येय लेकर हम अपने शिक्षा के माध्यम से कुछ ना कुछ सफल कर पाएंगे। जो इसका कोरोना का खतरा है वो टला नहीं है, वो भी 1 से 2 साल तक कह रहे हैं कि चलेगा। तो आज के समय में हमें सबसे पहले अपने को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को और अपने राष्ट्र को और पूरी मानवता को बचाना है, और शिक्षा के माध्यम से ये सब संभव है। ये जो पहला पर्पस आपको बताया मैंने, बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज टू एम्पावर द इंडिविजुअल, तो यहाँ से ही आपको रास्ता मिलेगा, शिक्षा ही वो रास्ता दिखाएगी। ये मेरा मंतव्य है इस बेसिक एम्स ऑफ एजुकेशन। Education must unleash the true potential of a student by recognizing and actualizing it. हमारे जो अपने छात्र के अंदर जो बसा हुआ है, अंतर मन में जो है, वो सब चीजें हमारे निकल के बाहर आनी चाहिए। और शिक्षा का जो परम उद्देश्य है वो यही है कि हम अगर एक शिक्षक के नाते एक छात्र के अंदर के जो गुण हैं उसको उकेर सकें, उभार सकें, तो हमारे शिक्षा का एक मूल उद्देश्य सर्व होता है। आई एम ऑडिबल? सर्वे जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं दे रहे लोग। हेलो। सो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, was said by Swami Vivekananda ji. So when I'm talking of this particular thing, then we have everything which is self-explanatory defined through this particular quote. Now I'll discuss the topic, which is professional education. The professional education, when I'm talking, is the education, a type of education, formal specialized training about a particular profession in which learners are taught the central concepts, principles and techniques, and how these are applied in real practice. The learners also require the necessary competencies needed for proper practice and behavior. हम अपने छात्रों को अपने इस व्यवहार के माध्यम से और हम प्रैक्टिस के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, सेंट्रल कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, टेक्निक्स होंगी, उनके माध्यम से हम अपने बच्चों को, जो हमारे छात्र हैं, वो कैसे उस अपने रियल प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे, ये सिखाया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि जितनी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं वो सारे के सारे उनको इंटर्नशिप कराई जाती है, अप्रेंटिसशिप कराई जाती है, जिससे वो जाके सही तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए मार्केट में। एग्जाम्पल्स are very well explained, but still I'll just quote specific professionals such as architects, chartered accountants, doctors, engineers, lawyers, nurses, scientists, and teachers, and lot many other could be. So I'll go for the teaching learning process. In the present scenario, what exactly the thing is, we have got one IPO cycle, which is input process output cycle. And when we are talking of this input process output cycle, we talk of the input as teacher characteristics,
the classroom process as the teacher behavior, and the output is student achievement. Students will achieve only when there are proper inputs and the processes. In the input, we have the student characteristics, the student behavior, and certain other things are also involved in this in the form of the output. This particular IPO cycle is there where the school characteristics are also involved in the form of the processes, because infrastructure is supposed to be the at the hem of the affairs, and the philosophy of the management is also well reflected in the processes. What are the different tools that are used for delivering knowledge? That is the experiential learning through live projects and simulation, interactive lectures with modern audiovisual teaching aids, excursion education visits or trips, student exchange programs, group work using cooperative learning groups, team-based learning, workshops and academic seminars and whatnot. So all those things which we have discussed, tools used for delivering knowledge, are the part and parcel of the teaching learning process. When we are saying this, because हम ये कहते हैं कि केवल टीचिंग क्लास के अंदर नहीं होती, टीचिंग क्लासरूम के बाहर जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है. So when the expert talks are held, when the industrial visits are held, these are the tools for delivering knowledge, and with the help of this, the students learn far better than what exactly the things they learn in the classroom. John Dewey has very rightly said, if we teach today's student as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. This quote is very pertinent in today's scenario, because the kind of practices that are prevailing are the practices which was yesterday's practice, And when we are talking of the yesterday's practices, they are not very much successful in today's scenario. So I say once again, if we teach today's students as we taught yesterday's, we rob them of tomorrow. That is, we are going to kill their future. We are playing with their future. So that is what exactly the thing is. When we have got to improvise our standards, the teachers are supposed to be user-friendly. And when I'm saying user-friendly, it is user-friendly with computers, the technology, and they are supposed to be friendly with the students also. I'm not saying they are enemies to the students, but still they should be teachers, the student friendly. Now, under this scenario, we can say, how can we make the classroom as dynamic as the world around us? Now, again, a question arises that what are the changes which can take place in this scenario? Which I'm saying that technology won't replace all teachers, but teachers who use technology effectively will probably replace the teachers. We all know that in this corona crisis time also, we have seen that unless the teachers interact with the students, they are not getting the same thing as if they were getting in the classroom. The classroom importance will always remain. The teacher interaction will always remain as the prime need of the education. Teacher is at the hem of the affair, student is at the hem of the affair. जो हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी, वो पहले थी, आज भी है और कल भी रहेगी. So technology won't replace all teachers, but teachers who use technology effectively will probably replace teachers who do not. मतलब ऐसे शिक्षक जो उस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, आज जो लोग जूम से जुड़े हुए हैं वो इस वेबिनार को देख पा रहे हैं. जो लोग जूम और जितने एप्स आज चल रहे हैं, जूम के अलावा भी मीटिंग और तमाम अलग एप्स चल रहे हैं, तो अगर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना शुरू करा तो soon they will be out of the market. It will be just like unskilled teachers because they don't have the knowledge of technology and they are not tech savvy. Under the scenario of 21st century, the teaching learning process will change. The teaching learning process in the 21st century scenario will be students' ideas about learning, working, and living in the future. Relationships of the teacher and the student will change. The students will be seen as a partner, which is depicted in the slide. The student's voice will be listened to a certain extent.
to a great extent, I can say. It has to be inclusive education. It has to be collaboration with others also. It has got to be like you have got to be using artistic tools. So many things are there in the 21st century. It is not one thing. We have got to use social apps also. We have to use Facebook, we have to use WhatsApp, because we are supposed to be connected with the students all the way. और कहीं ये भी कहा जाता है कि अगर हम ज़्यादा डोर पकड़ेंगे, ज़्यादा डोर खींचेंगे तो टूट जाएगी. तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखना है, बहुत मॉनिटरिंग भी नहीं करनी है स्टूडेंट्स को ऊपर, बट स्टिल कहीं ना कहीं हम इस तरीके की एक बीच का जो रास्ता होता है वो निकालें और कोलैबोरेट करें बच्चों के साथ, जिससे कि वो नित नई नूतन नवीन चीज़ सीख सके. हमें वो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो 21st सेंचुरी की ही लगे. ये नहीं कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. आज कितने टीचर्स ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं जानते. So those students who are not tech savvy will soon be out of the market. Those teachers who are not tech savvy will soon be not there in the teaching. So it is a kind of unskilled labor, I can say. So that term should not be used, but still, when I'm saying with the dignity of labor, but at the same time, the teachers have got to change their attitude. In case they don't do, certainly they will be out of the market. The next slide talks of, I think some problem. Yeah. As I discussed all this, the scenario of the education is changing and at a very fast rate. So journey from Industry 4 to Education 4. In the coming slides, I will discuss what exactly Industry 4 is and how it has an impact over the Education 4, or vice versa. Education 4 will be needed for Industry 4. This is one of my favorite quotes. Alvin Toffler has said in his book, Future Shock, the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. I'm reminded of one thing, which is the illiterate. When I'm saying illiterate means ऐसे लोग जो पढ़ नहीं सकते. और 21st सेंचुरी में illiterate वो होंगे जो लोग who cannot read and write. मतलब वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो लोग पढ़ और लिख नहीं सकते, लेकिन वो ऐसे लोग होंगे जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते. तो उनकी जो पद्धति है, अगर वो पुरानी पद्धति पे चलते रहेंगे तो केवल mere रीडिंग एंड राइटिंग विल नॉट सफाइस. रादर जो लर्न, अनलर्न और रीलर्न नहीं कर सकते. एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा. जैसे अगर हम एक हार्ड डिस्क लेते हैं, उसकी एक कैपेसिटी है 1 TB की लेंगे, 2 TB की लेंगे, हम कितनी भी एक TB जितनी हमारी अपनी कैपेसिटी हम वो ले सकते हैं. सेम वे माइंड हैज आवर ओन कैपेसिटीज. सो अगर हम जिस माइंड में सब चीज़ें वही भरते रहेंगे, पुरानी चीज़ें भरते रहेंगे और हम नई चीज़ें लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों से ही भरा रहेगा. तो हमें लर्न करना है और हमें वो चीज़ें भूल जानी है जो हमें भूलनी चाहिए, और हमें रीलर्न करना है. हमें जो नई चीज़ें हैं उन्हें रीलर्न करना है. पैराडाइम शिफ्ट इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है. पहले इंडस्ट्री 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, एंड नाउ इट इज इंडस्ट्री 4. सो इंडस्ट्री 4 is originated in 2011 from computerization of manufacturing. The term Industry 4 was announced at Hanover Fair, Germany. The World Economic Forum at Davos 2016 predicted major shift about the future of jobs. अब मैं ये जो 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं, मैं तो बड़ा हल्का सा डिस्कस करके आगे मूव करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे. और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री 4 है वो 2011 में जर्मनी में आया था. उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसके माध्यम से इस को जो कंप्यूटर्स है वो इंट्रोड्यूस करे गए थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और उसको हमने इंडस्ट्री 4 का टर्म दिया था. The World Economic Forum at Davos 2016 predicted major shift about the future of jobs. कहीं ना कहीं 2016 में जो एक फ्यूचर ऑफ जॉब्स था, एक सिनेरियो बदल रहा था, क्योंकि मैकेनाइजेशन आ चुका, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए. स्किल्ड लेबर अब इट इज द नीड ऑफ द आवर.
So disruptive technologies driven by Industry 4 have begun adding more fire to already VUCA. That is another term which I'll just explain in one of the slides. That is volatile, uncertain, complex, and ambiguous what. There is a whole lot of scenario which is changing in the industry and in the other fields also. And impacting our lives, our relationships, also the future of our jobs. Our jobs, the nature of our jobs will also change. We are moving from the world of problems and the world of dilemmas. It's a VUCA word. मतलब हम लोग अपने एक we are moving from a world of problems. हम एक समस्याओं की दुनिया से एक dilemmas की दुनिया में जा रहे हैं. हमें किधर जाना है, हमें कौन सा path choose करना है, हमारे पास कौन से alternative course of action है, that we have to decide. And it's a VUCA word. VUCA is volatile, uncertain, complex and ambiguous. ये जो टर्म है ये अपने आप में यूएस मिलिट्री कॉलेज ने कॉइन करी थी और जब उनके जो लीडर्स थे वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो ये टर्म उस समय कॉइन हुई थी और उसका बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द वोलेटिलिटी इट इज इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, इट इज लेस क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर, दैट इज द अनसर्टेनिटी. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी इट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसीजन फैक्टर्स. And when I'm talking of ambiguity, there may be no right answer. Ambiguity शब्द को आप समझें तो हम कह सकते हैं कि जब हमें डिसीजन मेकिंग पहुंचना हो और हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल हों, लेकिन हमें जब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा हमारे हिसाब से, तो वो हमें देखना होता है. और ये भी हो सकता है कि एक परिस्थिति में वो डिसीजन सही हो और दूसरी परिस्थिति में वो डिसीजन गलत हो. तो ये एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि कहीं हम एक ऐसी अवस्था को पहुंच रहे हैं जहां VUCA और बड़े चैलेंजेस खड़ा कर रहा है. तो हमारे जो वर्कफोर्स है उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस फॉर द वर्कफोर्स इंक्लूड द रैपिड चेंजेस ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशन. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज अबाउट द क्वालिफिकेशन व्हिच इज वेरी मच नेसेसरी. हम ये देखते हैं कि पहले हम 10th पास को भी अच्छी नौकरी मिल जाती थी, 12th पास को मिल जाती थी. आज अगर आप PhD करे हुए हैं तो भी शायद नौकरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही. हम केवल क्वालिफिकेशन देख रहे हैं और क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसको देख रहे हैं. लेकिन हम जब काम करने जाते हैं तो उस क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाता, बिकॉज क्वालिफिकेशन बिकम्स द गेटवे ओनली. Then creation of new jobs for high-skilled workers in the area of planning, configuration, and maintenance of the new technologies. In this particular point, I'll say that कि हमें नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें जो एरियाज ऑफ प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस हैं वो देखने पड़ेंगे. एक्सपेंशन ऑफ लो स्किल्ड वर्क थ्रू द यूज ऑफ रोबोट्स एंड असिस्टिंग सिस्टम. ये पॉइंट इसलिए पर्टिनेंट है कि कहीं ना कहीं जब हम इसको बात करते हैं तो रोबोट्स और असिस्टिंग सिस्टम हमारी दुनिया को बदल रहे हैं और लो स्किल्ड वर्क है वो रोबोट्स और असिस्टिंग सिस्टम के माध्यम से ही करवाया जा रहा है. एक्सटेंसिव कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर्स बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस. ये जो कंट्रोल है बहुत ज़्यादा है और जो मॉनिटरिंग ऑफ वर्कर्स बिहेवियर है वो बहुत बदल रही है क्योंकि आजकल इतनी समस्याएं चल रही हैं और वर्कर का जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस है उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए टूल्स बने हुए हैं. हम देख सकते हैं कि आजकल बायोमेट्रिक चल रही है, अभी CCTV कैमराज लगे हुए हैं which are going to judge the behavior and the performance will be judged on the basis of the work you performed and how well you performed. That also is there. Then it can be judged. There are certain parameters which one can go for. Increased expectations regarding the individual flexibility. When I'm talking of this particular point, it talks of the individual flexibility. There are increased expectations regarding work. There's a concept known as SOHO, which is small office, home office. There's a concept of the work from home, which is there. The IT industry is using this particular term, which is regarding the individual flexibility. If you have to work, you work there from home also. That is very much possible. Education 4 for Industry 4. अब हम देखते हैं कि there has been a shift. Education 4 को अभी Industry 4 के लिए बनना पड़ेगा. और hello,
Is it audible, Sarvesh ji? Yeah, sir. Yeah. Please continue, sir. Okay. So मेरे को लगता है कहीं आवाज ना आए तो I think ये वेबिनार का एक बहुत बड़ा घाटा भी है, क्योंकि यहाँ फेसेस नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ कैप्टिव ऑडियंस ज्यादा है, पैसिव मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए और मैं बोलता रहूं. So, Industry 4 is defined by connected cyber physical systems, powered by IoT, that is Internet of Things, fueled by big data, creating a fully networked society. When I'm talking this particular point, there is an Internet of Things. That means there is a whole lot of things which are there. We are talking of the cyber security. We are talking of the cloud computing. We are talking of so many things which are very much there. We are talking of embedded systems. So we have to create a fully networked society. So in today's world, we are supposed to be connected with the big data and IoT as the tools of this particular thing. In such a hyper-connected disruptive world, again, this is hyper-connected disruptive world when there is a disruption of technologies. So technologies are going to be disruptors. I'll just explain this with help of one of the examples. हम एक बात करते हैं कि हमने देखा आईफोन आया, आईफोन ने मार्केट को डिसरप्ट करा. पहले आईपैड आया, आईपैड ने मार्केट को डिसरप्ट करा. तो एप्पल जैसी कंपनीज या जो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल ने काफी चीजें, गूगल ने याहू मेल को खत्म कर दिया. तो ये जो चीजें हैं, ये अलग अलग पॉलिसीज लेके आते हैं और हाइपर कनेक्टेड डिसरप्टिव वर्ल्ड में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं. तो जो कहीं ना कहीं हम जब इस तरीके की बात करते हैं डिसरप्टिव वर्ल्ड की, तो हमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की भी सोचना चाहिए. So education has no option but to adapt to these changes in industry which are brought by disruptive technologies. अभी अगर हम अपने को इस लेवल तक नहीं लाते कि आज हम टेक्नोलॉजी को अपना सकें जिस तरीके से हमें अपनाना चाहिए, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे. अगर हम देखें और दूसरे देशों की तुलना करें अपने से, तो हम बहुत पीछे हैं, बट हम दूसरी ओर भी देखना शुरू कर रहे हैं और उस ओर देख के हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम एजुकेशन 4 की दुनिया में आगे जा रहे हैं. एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन 4. दैट मीन्स जब इंडस्ट्री 4 आया था, तो इंडस्ट्री 4 के कॉम्पेटेबल अगर हम नहीं होंगे और एजुकेशन 4 को नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम बहुत पिछड़ जाएंगे. हम देखते हैं कि हमारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं. उनके पीछे कारण क्या है? अभी हम रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, आप सब टीचर्स हैं, कुछ छात्र भी हैं और कुछ हमारे मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हैं, तो सभी लोग और जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, हम सब में मोस्टली लोगों को ये मालूम है कि जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी. कोरोना के कारण तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी. तो हमें और ज़्यादा एक एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करनी है जो बहुत अच्छी हो, क्वालिटेटिव के साथ साथ वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर वैसी नई चीज़ डेवलप करे जिसकी वजह से बच्चे में एक नए चीज़ों को आत्मसात करने का गुण बने. Then there is a need for education 4 framework. Why there was a need? I'll say that education 1.0 was regarding the agriculture and economy, which took place in 19th century. Industrialized economy, which took place in 19th century once again. Then the knowledge economy, which took place after the advent and evolution of the computers. And we are cyber connected with the help of the technology and internet, that is innovation society in the 21st century. So transformation from education 1 to 4, how did it took place? I'll try to just throw light over this. Employment trained children for industry. जब हम employment trained children for industry मतलब कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर एजुकेशन 1 के जमाने में चल रही होगी, तो जो चल रही थी उसके हिसाब से हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना था और उसके लिए बच्चे भी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, लेबर भी काम कर रही थी, लेकिन वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे. मोर एडवांस वर्कर्स वर नीडेड. अब एक शिफ्ट आया जो एजुकेशन 2 में आया. मोर एडवांस वर्कर्स वर नीडेड, नाउ एबिलिटी टू रीड एंड राइट. More advanced workers were needed, now ability to read and write. एक मिनट होल्ड करिए. हेलो. So more advanced workers were needed, now ability to read and write. When I'm talking of this particular thing, then there was shift.
there was a shift because they previously, when we were talking of, they were not literate. Now they become literate. Then education 3 is computers became tool for industry. As with the advent and evolution of the computers, they became tool for the industry, and the same thing was assimilated in the education also. If we don't include that as the part of the education will be lagging behind. And the internet changed the whole paradigm for industry, and the students are still being taught according to education 2.0. In most of the cases, we have seen that the kind of technology that we must have used with the advent and evolution of the internet, we have not been using, and still we are using education 2.0. So we have got to change the pace and then increase our level of education, and we have got to go for education 2.0, 4.0 from 2 to 2.0. That is, there has to be a transformation from education 2 to education 4. We are lagging behind. As such, India as a country is lagging behind because there are many problems of the infrastructure, of the psychology or the mentality of the students, the parents. But there could be many options which are available. If we have will to do, we would be able to do. If we don't, हम एक quote कहते हैं, if there is a will, there is a way. जो लोग अपने कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखते हैं, वो वाकई में कर गुजरते हैं, तो हमें education 2 से निकल के education 4 पे आना पड़ेगा. The word is already there. I was listening to one of the interviews by AICT chairman, Dr. Anil Sahasrabudhe, and in his deliberations, he was talking of the flipped classroom. I was excited to know what exactly flipped classroom is. And this is one of the webinar where I was listening to him in challenges of the management education. It was the webinar which took place in collaboration with IMA. So the traditional classroom versus flipped classroom. I was not aware of this at that point of time. What are the flipped classroom? I've heard that, but I have not understood the concept. Then I thought I should talk of this particular, and I should assimilate this flipped classroom and tell what are the paradigm shift in professional education taking place. So traditional classroom versus flipped classroom, I'll just discuss this particular thing, that in traditional classroom, instructors prepares material to be delivered in the class. The students listen to lectures, the other guided instructions in class, and take notes. Homework is assigned to demonstrate understanding. This is what exactly practice has been. But in the flipped classroom, instructor records and shares lectures outside of the class. Now, this is the responsibility of the educational institutions to provide such basic infrastructure. But at the same time, if it is there, we can do that. And I think with the corona, अभी कोरोना के बारे में जब ये सब चीजें चल रही हैं, तो एक जनरल सा सवाल जा रहा था कि आज की टेक्नोलॉजी को किसने चेंज करा. तो बोले टेक्नोलॉजी को किसने चेंज करा, बोले सब हो सकता है सीईओ ने करा हो. नहीं, उसने नहीं करा. बोले सीआईओ जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने करा. बोले नहीं, उसने भी नहीं करा. बोले कोरोना ने करा. क्योंकि हम जब टीचर्स हैं तो हमने भी उस टेक्नोलॉजी को अभी जूम, हालांकि मैं पिछले 4-5-3 साल से मैं अटेंड कर रहा हूँ सेशंस, और वेबएक्स पे भी मैंने सेशंस अटेंड करे हैं, डिफरेंट सेशंस होते रहते हैं. लेकिन हम लोग इन जनरल जब बात करते हैं तो कितने लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो जूम पे मीटिंग करते थे या वेबएक्स पे मीटिंग करते हैं, और जो अलग अलग मीटिंग्स होती हैं. तो फ्लिप्ड क्लासरूम वो एक कंसेप्ट है जिसमें इंस्ट्रक्टर पहले एक रिकॉर्ड कर लेगा और उसके जो लेक्चर्स हैं वो आउटसाइड ऑफ द क्लास शेयर कर देगा. स्टूडेंट्स वॉच, लिसन टू लेक्चर्स बिफोर कमिंग टू क्लास. मतलब अगर हम एक देखें, एक सिनेरियो ऐसा हो कि हम बच्चे को पहले होमवर्क देंगे और होमवर्क देके उससे कहेंगे कि अगले दिन आके ये होमवर्क जो हमने आपको दिया है वो चेक करना है. तो ये जो सिनेरियो बन रहा है वो हम अगर उसे एक ई मोड पे ले जाएं, अगर हम उसे कन्वर्ट करा लें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, तो ये एक तरीके से फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट हो गया. एंड स्टूडेंट्स वॉच, लिसन टू लेक्चर्स बिफोर कमिंग टू क्लास. जो स्टूडेंट्स हैं उसको लेक्चर को पहले देखेंगे, सुनेंगे, और वो लेक्चर को तैयार करके उसमें से जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तो इसमें स्टूडेंट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट का रोल इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स वॉच करेंगे, लिसन करेंगे, और कितने लोगों के पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं होगी. तो शायद हमें जब फ्लिप्ड क्लासरूम की बात करेंगे तो वो कंसेप्ट हो सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव में उतना ठीक ना रहे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम लोग टेक सेवी होते जा रहे हैं और ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट हमारे उसमें आता जा रहा है. क्लास टाइम इज डिवोटेड
for applied learning activities and more higher order thinking tasks. ये जो हॉट्स है ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको, जो टीचर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केवल उस क्लास में आके जो उसने डिस्कस करा है और जो उसने ज्ञान प्राप्त करा है बच्चे ने एक दिन पहले जो लेक्चर के माध्यम से हो गया था, हम उसको केवल आके डिस्कस करें, ना कि हम उस पूरे सिलेबस को वहाँ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंस्ट्रक्टर एंड पीयर्स एज नीडेड। हम जब ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 360 डिग्री अप्रेजल जैसे चल रहा है, ऐसे ही आज हम जब HR की बात करते हैं तो उसमें 360 डिग्री की बात करते हैं। अभी लर्निंग के जो मोड है वो भी बदलता जा रहा है और केवल टीचर एक मेंटर ना होके उसके साथ में उसके जो पीयर्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन होगा और पीयर्स भी उसको उतना एक डिस्कस करके एक टीम की तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग की तरह उसको करेंगे। देन एजुकेशन का एक जो एजुकेशन 4 का इकोसिस्टम है उसे समझ ले तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। Then dynamic technology is there, experiential learning is there, university, society, industry is there. And when I'm talking of industry, society and university, they are there in the wheel, you can see and witness. Industry institute interface को ज़्यादा बनाना होगा। अभी हम देखते हैं कि हम लोगों को लेटर्स लेने होते हैं और बच्चे जो हमारे इंडस्ट्रियल विजिट पे जा रहे होते हैं उनको हम इंडस्ट्री का एक दायरा, इंडस्ट्री का एक बेसिकली एक व्यू देते हैं और उस व्यू के लिए हम MBA फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के दौरान जब समर इंटर्नशिप के लिए बच्चे जाते हैं, वो जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो कुछ और हो सकता है, लेकिन ऑन पेपर तो हम लोग करते ही हैं, चीज़ों को हम उस हिसाब से करते हैं। हमारे B.Ed के छात्र भी आप देखे होगा कि उनको हम इंटर्नशिप पे भेजते हैं और अलग अलग उनके जो कोर्सेज हैं, अगर हम DLED की बात करें तो ये सब आपके छात्र टीचिंग पे जाते हैं और MBBS ऐसे कोर्स या जो आपके जितने भी नर्सिंग वाले कोर्सेज हैं उसमें भी अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप लगी होती है। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो भी अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो इसका जो बदलाव है वो हमारी शिक्षा में दिखाई नहीं देता जितना दिखाई देना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा होता है तो शायद हम इंडस्ट्री 4 की ओर चले जाएंगे। और ये जो आउटर सर्किल है वो आपको दिखाता है कि रिसर्च, लेक्चर्स, लर्नर एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट एंड पार्सल हों और उसके माध्यम से ही लर्निंग का जो पेस है वो फास्ट होगा। Then what are the benefits of education 4? I think people are getting things, so because things are not very much seen. एक वेबिनार का जो बड़ा नुकसान है तो मुझे लगता है कि I cannot read the faces, one cannot read the faces, और बहुत से लोग पैसिव लर्नर की तरह हो जाते हैं और वो एक नुकसान होता है। स्पीकर केवल बोल रहा है, ये मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। तो डायलॉग तो बाद में होगा, वो एक अलग बात है, बट स्टिल एक नुकसान है। हम लोग फेसेस को रीड नहीं कर पाते, हमें ये पता नहीं लग पाता कि जो हम बोल रहे हैं उनमें से कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। सो इफ पीपल आर अटेंटिव दैट्स वेरी गुड एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। सो बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन 4 for manufacturers, the addition of many more students with nationally portable industry certifications would reduce the shortage of higher skilled workers. ये कहीं ना कहीं हम एक चीज देखते हैं कि जो हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो स्किल्ड वर्कर्स को मिलेंगे और एक तरीके से जब एम्प्लॉयबिलिटी की रेट है वो बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्री की डिमांड्स हमें मालूम है कि हमें इंडस्ट्री में इस तरीके के लोग तैयार चाहिए तो ऐसे सिलेबस डेवलप करा जाएगा और उनके सर्टिफिकेशन के लिए हम तैयारी करके उसको उसके हिसाब से देंगे, बच्चे तैयार करके देंगे। So it is going to be at par with industry. What exactly is being looked by the industry, we are going to supply that. We are supposed to be a supplier of the students that way. So ensuring that all students are well equipped to secure productive employment in their chosen career pathway. इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और ऑल स्टूडेंट्स का होना चाहिए। तो इसके बीच में हम देखते हैं कि हम जो उसके जो चूजिंग कैरियर पाथवे है, कोई छात्र हमारा टीचर बनना चाह रहा है तो हम उसे टीचर के लिए उसे ट्रेन करेंगे, कोई छात्र हमारा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो हम डॉक्टर के लिए ट्रेन करेंगे। और जब हमारे यहाँ आएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में उसके जो डोमेन्स हैं वो डिसाइड करता है। मार्केटिंग लेना है, HR लेना है, फाइनेंस लेना है, IB लेना है, IT लेना है, तो हम उसके जो चूजिंग कैरियर पाथवे है उसके हिसाब से उसको तैयार करके भेज देंगे मार्केट के लिए। लेकिन उसके लिए ऑल स्टूडेंट्स आर वेल इक्विप्ड टू सिक्योर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, ये एक चीज जरूरी है।
तो हम जब इसको इस तरीके से देखेंगे तो हमें मार्केट का ट्रेंड समझना होगा। आज आप देख रहे होंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे बहुत बड़ा एक खतरा मंडरा रहा है, एविएशन सेक्टर पे खतरा मंडरा रहा है। तो ये एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग कहाँ जाएंगे, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और मार्केट इकोनॉमी हमें क्या डिमांड है, हमें उसको फुलफिल करना चाहिए। For the economy, having a large number of students with more advanced technology skills will increase company willingness to invest in new equipments and software, which will elevate labor productivity. अगर हमने जो काम करे हैं वो लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के करे हैं, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हम उसके माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। फास्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ विल इन टर्न इंक्रीज नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी जो पेस है वो फास्ट पेस रहेगी, रेट विल बी फास्टर। So with this, I finish up the part 1 of my lecture, and we are shifting to part 2, paradigm shift in professional education, the topic that we have chosen today. This was the basic background which I was discussing, and in this second part, I will be discussing about the paradigm shift that is taking place. However, we have started with industry 1 to education 4, because industry 1, 2, 3, 4 and education 1, 2, 3, 4, we have all discussed, but at the same time, what are the initiatives taken by the different regulatory agencies, the accreditation bodies? This I will discuss in the second part. The second part talks of the basic structure of tertiary education in India, regulatory framework governing higher education in India, challenges and opportunities in COVID world, registered number of HEIs in India as per ASIHE, All India Survey of Higher Education, AISHE. Then initiatives by AICT, AKTU and MOOC providers, promotion of innovative startups or innovation cell, mandatory accreditation. IIM Ahmedabad ने एक case center run करा है. I'll try to give you the information about that. IIMA ने remote proctored internet based test start करे हैं. Audio video e-content चल रहा है, digital content चल रहा है. हम लोग किस तरीके से journals को access कर सकते हैं. Accelerated hand-on learning कैसे हो रही है, e-governance के मुद्दे पे काम हो रहा है, और track your progress ये भी बात करेंगे. When I'm talking of the basic structure of tertiary education in India, हम अगर देखें तो हमारे जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के लेवल पे है. हम टर्शरी एजुकेशन की बात ज़्यादा करेंगे, जिसमें बच्चा 12th पास करके जो अपर सेकेंडरी एजुकेशन है वो पास करके उसके बाद हमारे यहाँ आता है हायर एजुकेशन में. तो उसमें हम देखेंगे तो ऑन टू द राइट हैंड साइड यू विल सी दैट इट इज़ अ बैचलर डिग्री इन मेडिसिन विच इज़ 5.5 years. डेंटिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अपने डिफरेंट कोर्सेज हैं, MBBS या अलग कोर्सेज जो इस तरीके के डॉक्टर्स वाले कोर्सेज हैं, उनको अलग अलग उसके जो नॉमेनक्लेचर है उसके हिसाब से हमें डिवीज़न है. और हम जब बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक या फार्मेसी या एग्रीकल्चर, इसके साथ में हम आर्किटेक्चर की बात कर सकते हैं. तो ये आर्किटेक्चर यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन हम उसकी बात भी कर सकते हैं. वी कैन इंक्लूड दिस अंडर the purview of the tertiary education in India. Then we have the bachelor degree. On to the left hand side, you will see that bachelor degree is for 3 years. We are having 10 plus 2 plus 3 kind of setup. Then we have master's degree. Master's degree from 1 to 3 years. There are different variety of courses. Accordingly, master's degree could be done accordingly. And there's MPhil and there's a doctoral program. Doctoral program is the highest level of thing that we are supposed to have in this particular thing. But at the same time, postdoctoral also one can go for DLIT also, but that they are not the part and parcel of this particular for the purpose of discussion. Then regulatory framework governing higher education in India. At the top, there is central government and there is state government. State government at the state level and central government for the national level. Whatever kind of policies are supposed to be framed, they are supposed to be framed by MHRD, which is Ministry of HRD, and multiple other ministries in collaboration with multiple other ministries. There is a regulatory councils, there is professional councils, that is UGC, AICT, NCT. These are the regulatory councils or the professional councils. There could be MCI. So all those councils are very much there. And for improving the quality, we have got accreditation bodies, that is NAC, NBA, and NABH for the purpose of hospitals. That is the higher education institutions
the framework is there, regulatory framework. And in the state level, we have the state government departments, the ministries are there, Council of Higher Education, or technical education are very much there. We are having the challenges and opportunities in COVID world. क्या क्या challenges हैं और क्या क्या हमें opportunities available हैं COVID world में? With few of the slides, I would like to discuss this. The novel coronavirus, that is COVID-19, has impacted employment. इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो एम्प्लॉयमेंट पे पड़ा है, एजुकेशन पे पड़ा है, एनर्जी पे सेक्टर पे पड़ा है, एग्रीकल्चर पे पड़ा है, और अगर देखें एविएशन सेक्टर पे भी पड़ा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे पड़ा है. तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये कोरोना ने काफी कुछ बदलाव लाया है हमारी इकोनॉमी में, और इसके साथ में जो वेलबींग है उसे सबसे ज्यादा हिट करा है. जो लोग इमोशनल वेलबींग वाली बात करेंगे तो अगर हम वो भी बहुत हिट करा है, उसको हम देखते हैं. एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, दैट इज द HEIs, इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर इन टर्शियरी एजुकेशन आर नो एक्सेप्शन. मतलब सारे हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान सब बंद हैं. जहाँ सेमिनार हुआ करती थी वहाँ वेबिनार पे आ गए. लेकिन इसका एक बड़ा फायदा हम लोगों को मिल रहा है कि शायद ये जो हम वेबिनार देख रहे हैं इससे हमारे ज्ञान का स्तर थोड़ा सा ऊंचा हुआ होगा. हम अक्सर सेमिनार्स में नहीं जा पाते थे, वेबिनार में जाएंगे. सो इट्स अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई कैन से दैट. द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ करंट क्राइसिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. हमें देखते हैं कि जो करंट क्राइसिस चल रहा है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफी हद तक सिग्निफिकेंट है. और इम्पैक्ट ऑफ द कोविड ऑन HEIs, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है हमारे HEIs जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं? As per UNESCO statistics, over 1.5 billion secondary and tertiary school age students worldwide are unable to attend schools due to ongoing crisis, which is likely to have a huge impact on global education. जो global education का सिनेरियो है, लॉकडाउन और जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके मद्देनजर 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स अपने घर में बैठे हैं. KPMG India reports that nearly 37.5 million students and 1.4 million faculty and staff in India could be affected by this crisis. यहाँ इंडिया में, हमारे यहाँ भारत में देखा जाए तो लगभग 1.5 मिलियन फैकल्टी और 37 मिलियन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ अफेक्टेड होगा. मतलब देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ बच्चे और 4 करोड़ बच्चे और लगभग 15 लाख स्टाफ के आसपास ये अफेक्ट होगा इस क्राइसिस की वजह से. इसमें आल्सो इम्पैक्ट फ्यूचर एडमिशन एंड enrollment for Indian universities as nearly 5 million aspiring college students exploring enrolling in university under the uncertain conditions. ये हमारे एडमिशन पे बहुत सीवियर इम्पैक्ट आने वाला है. इसकी वजह से अब एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द हायर एजुकेशन, ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस हैं वो हम एंटिसिपेट करें तो हम इसे 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं. To deal with the issue of continuity of teaching and research at the earliest, to maintain the employment of students already placed or likely to be placed in job in the next few months. ये एक बहुत important point है हमारे हिसाब से कि जो हमारी रिसर्च है एक तो वो नहीं हो पा रही, हमारे जो टीचिंग है वो नहीं हो पा रही, इसके साथ में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट, जिस बच्चे को ऑलरेडी प्लेस हो गया था या जिसका इस साल प्लेसमेंट होना था, उसको कुछ जगह कंपनी से ऑफर लेटर एक्सेप्ट करे हुए भी ठुकरा दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि अभी आप होल्ड पे हैं और आपको बाद में ज्वाइन करने को कहा जाएगा. और कुछ जगह उन्होंने उनको टर्मिनेट भी कर दिया है, उनके जो लेटर्स इशू करे थे उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं. द लॉन्ग टर्म चेंजेस कॉज्ड बाय द सडन शिफ्ट इन प्रोसेस, बिहेवियर एंड न्यू रिसोर्स डेवलपमेंट. द changes in the working model of HEIs in terms of the ability of parents and students to afford higher education. ये एक important point है क्योंकि जब हमारे अपने parents हैं, जो छात्र हैं, उनके parents के पास उतना एक वो रहेगा नहीं, पैसा नहीं रहेगा, तो वो higher education को afford नहीं कर पाएंगे. The macro level changes needed for regulation and facilitating quality higher education in changing times. तो macro level changes, हालांकि सरकार ने काफ़ी हद तक बदलाव करे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैक्रो लेवल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय हायर एजुकेशन के लिए. अब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. और व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दीज चैलेंजेस?
The current crisis could lead to different scenario for three reasons. As human health is at risk, many of the conventional sector industries may experience significant changes in consumer behavior, with changes in the nature and quantity of demands. अब हम देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है ना, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर. सो जो हमारे कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं उसमें जो उनका कंज्यूमर बिहेवियर है वो बदल सकता है. हमें एक नए तरीके के जो मॉडल्स हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, और न्यू बिजनेस मॉडल्स आर सपोज टू बी डेवलप लुकिंग इनटू द kind of demands that are being generated from those particular sectors. Students may be reluctant to return to traditional models of education after experiencing alternative education models at lower cost. अब चूंकि क्लासरूम जब भी होगा तो हमारा जो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचिंग है, तो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन है, वो उस पर थोड़ा सा सफ़र करेंगे वो लोग, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे अब. सो क्योंकि उन्होंने अपने घर बैठे क्लासरूम देख लिया है, घर बैठे टीचिंग देख ली है, तो उनको शायद, और दूसरी बड़ी बात है, उसको ये जो नया मॉडल है वो लोअर कॉस्ट पे भी है, नहीं कहीं आना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता, अपने केवल इंटरनेट का जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है, और लोग तो बरमूडा में पहन के अपने क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर म्यूट मोड पे होते हो, आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा होता, और बहुत सारी एक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने नहीं होती हैं. Changes in job market may lead people to use their transferable skills to enter a different industry. That is, aviation and hospitality executives may apply for jobs in sectors that utilize similar knowledge, skills and attitude. हमारे यहाँ एक के ऐसे का वो एक मॉडल होता है which is knowledge, skill and attitude. अगर हम उसको डिस्कस करेंगे तो देखा जाए तो हमारे जो changes in job market है वो सिनेरियो बदल रहा है. तो जो हमारे हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव या एजुकेशन सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उनको कोई और सेक्टर चूज करना पड़ सकता है. What are the opportunities of for higher education institutions? This is for the institutions to take in notice that in order to weather the current crisis, HEIs, that is higher education institutions, need to act quickly, think innovatively, and work collaboratively to mitigate the impacts of this challenge. This requires a commitment to change and a shift in the mindset of what we plan and deliver education to use novel solutions for greater impact. हम कैसे प्लान करें कि हम इसका सॉल्यूशन डेवलप कर सकें, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है. So it is the basic thing and the opportunity for HEIs also. HEIs can use this an opportunity for academic impact through collaboration as one word family. वसुधैव कुटुंबकम की भावना अगर हमारे अंदर है तो हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं. और जो अब एडवर्सिटी है, अभी हम देख रहे हैं ये जो वेबिनार्स हो रही हैं, हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम अच्छे लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं. तो यहाँ जो कोलैबोरेशन है वो हमारे एकेडमिक इम्पैक्ट को एक बदलेगा और उसके हिसाब से हमारे उसमें बदलाव आएगा. As I was telling previously, I have taken up the data from AISHE, that is All India Survey of Higher Education. As far as this particular data is concerned, this is of 2018-19. There is a survey which takes place. So what are the registered number of educational institutions in India, higher education institutions in India? Presently, there are 993 universities and the number of colleges are 39,931. Which includes various standalone institutions, various autonomous, and all the kind of categories that we are having. Then initiatives by AICT or AKTU or MOOC providers. ये थोड़ा slide में कुछ गड़बड़ है, but still I'll just try to tell what exactly things are written in this particular slide. AICT ने कुछ MOOC के courses चलाए हैं और AICT ने जो free courses हैं वो 43 free courses ई-लर्निंग के चलाए हैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम. अभी बीच में जो कोविड का पीरियड चला था, एआईसीटी ने बच्चों के लिए कोर्सेज चलाए थे और जिसमें हर छात्र और फैकल्टी वो कोर्स फ्री में अटेंड कर सकता था. जो कोर्स एरा आप नाम सुना होगा, एडेक्स नाम सुना होगा, तो जितने बड़े आपके मूक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो उन्होंने कुछ कोर्स चलाए हैं. मूक के बारे में बता दूं, मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. जितने भी हम ये कोर्सेज करते हैं ये मूक कोर्सेज कहलाते हैं
और इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, उसमें कोर्सेरा, एडेक्स और तमाम वो सब तो हैं, साथ में हमारे अपने जो स्वयं और NPTEL भी है। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, वो MHRD का प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वो MOOC प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वो प्रोग्राम कंडक्ट कराने होते हैं, और ये कंटेंट डेवलपर्स हैं, अगर MOOC प्रोवाइडर्स हैं तो कंटेंट डेवलपर्स भी उस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। सो एज ए टीचर वन कैन डेवलप द कंटेंट and upload it on the Swayam website. I'll come later on this point also, which is another important aspect from the viewpoint of the understanding of the faculty. Then AICT is running one Atal Academy, that is AICT Training and Learning Academy. The name is given like Atal Academy, and which conducted 185 training programs in 2019-20, और 2020-21 में उन्होंने 500 प्रोग्राम्स प्लान करे हुए थे, और अभी कोरोना काल में उन्होंने 23 सच प्रोग्राम्स वर कंडक्टेड। अब एक मैं आपको बात बताऊंगा यहाँ कि एक कुछ FDP कराती है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम पे AICT है, वो FDP कराती है, दैट इज नोन एज FDP SI। FDP जब हमारे अपने बच्चे एंटर करते हैं, हमारे स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को, एक छात्रों को एक FDP जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है वो कंडक्ट कराया जाता है। और इसके लिए AICT ने इस बार ग्रुप बना के उनको FDP कराई थी, जो हमारे अपने फैकल्टीज थे। सो अलोन इन May 2020 5 such FDPs वर कंडक्टेड। हमारी जो एक दूसरी अफिलिएटिंग बॉडी है वो AKTU लखनऊ है। इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी कैन से दैट for this sake, for BTech, pharmacy, MBA and all these kind of courses, we have the affiliating body which is AKTU and MJPRU also. So I have taken the initiatives taken by the AKTU. AKTU in collaboration with IIT Kanpur offered Learn to Create a MOOC course free for faculty. It was the course was having a fees of say around more than 1,000 rupees, but it was free for faculty at that point of time. Online pre-PhD course was launched. Artificial intelligence based COVID tool it was launched. That is another area and dimension which I can say the AI is one of the emerging field, with the help of which the robotics and robots are working. Workshop on 3D printing was also run by AICT. अब AICT ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है जिसमें प्रमोशन ऑफ इनोवेशन और स्टार्टअप्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो हमारे अपने छात्र हैं वो स्मार्ट इंडिया हैकेथन के माध्यम से एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, जो वो टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ प्लेटफॉर्म टू सॉल्व सम ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स वी फेस इन अवर डेली लाइफ्स। हमारी जो अपनी डेली लाइफ की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक छात्रों के माध्यम से एक ग्रुप बना के वो प्रॉब्लम पोज करी जाती है और वो उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। जो SIH है उसने 2017 में इनिशिएटिव लिया था, और अभी तक 10 लाख बच्चे उसको 10 लाख छात्र उसको अटेंड कर चुके हैं। 7,218 इंस्टीट्यूट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। 256 organizations, that is the companies, they have participated in this particular program, and 5,635 ideas and solutions were selected, and जो problem statement थे वो 1,886 plus थे। जैसा मैं पहले बता रहा था कि FDP कंडक्ट कराई थी AICT ने, तो जो स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं, when they are admitted in the college, जब वो एडमिशन लेते हैं तब उस समय मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम इज मस्ट, मतलब it is there, and it is there for 3 weeks. During this 3 weeks, they are supposed to undergo the physical activity, the creative arts, the universal human values, literacy, proficiency module, lectures by eminent people, visit to local areas, and familiarization to department of branch. ये एक जैसे हम लोग अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं, this just like similar to that, but still it has a proper format, and it is running nationwide because it is run by the AICT, and AICT run institutions have to go for this, and they have to send a report of this also. Then training modules during the induction of teachers. तो कुछ training modules हैं, general orientation towards technical education, inculcation of values and attitudes, and all these are also being
run by AICTE. This is innovation cell. हम देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें बहुत पीछे है, हमारी जो रेट है वो बहुत पीछे है. So to increase to encourage ideation, creativity among school and college students, ये innovation cell develop करी गई है to create mechanism to harness India's ability as service-led economy for building knowledge-based and innovation-driven economy to promote Think in India philosophy. अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ थिंक इन इंडिया फिलॉसफी की बात हो रही है, जहाँ हम लोग भारत के लिए सोचेंगे और हमारे अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो इस तरीके के रन करेंगे, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन होना चाहिए. देन मैंडेटरी एक्रेडिटेशन की बात कर रहे हैं कि एक्रेडिटेशन हैज बीन मेड मैंडेटरी. एक्रेडिटेशन का बेसिक मतलब है कि हम अपनी जो संस्था है उसे एक्रेडिट करवाते हैं और उसकी डिफरेंट बॉडीज बनी हुई है, जैसा मैंने अपनी पहले वाली स्लाइड में डिस्कस करा था. NBA है और NAC है और एक अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो NABH है. तो हम ये हमारे लिए क्वालिटी इनिशिएटिव के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर हम देखें हमारा टॉप 100 में कहीं नाम नहीं होता, टॉप 200 में नाम नहीं होता, तो सरकार का ये नित्य प्रयास है कि हमारी संस्थाएं एक्रेडिट हों, चीज़ें इम्प्रूवाइज करें और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए ये मैंडेटरी है कि जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 60% ऑफ द प्रोग्राम्स आर सपोज टू बी NBA एक्रेडिटेड. ये चूंकि पिछले साल की रिपोर्ट है, इसमें नेक्स्ट 4 इयर्स था, अभी इस साल की रिपोर्ट के हिसाब से रिपोर्ट नहीं आई है, बट स्टिल ये इस बार 3 साल हो गया है. अगले 3 साल में अगर कोई भी कॉलेज जो रन कर रहा है और वो NBA से, अगर टेक्निकल कॉलेज है और वो रन कर रहा है, टेक्निकल कॉलेज में मैं अगर कहूँ तो फार्मेसी आ जाता है, MBA आता है और जितने हमारे इस तरीके के कोर्स हैं, इंजीनियरिंग है, वो आ जाता है. तो अगर वो लोग ये कोर्स को वो इस पर्टिकुलर कोर्स को एक्रेडिट नहीं करवाते, इंस्टीट्यूट को एक्रेडिट नहीं करवाते, तो 3 साल बाद उनको एक्सटेंशन ग्रांट नहीं होगा. जो एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल है उसके माध्यम से हम अगले साल के एडमिशन लेते हैं, वो ग्रांट नहीं होगा. सो देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर चेंज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एंड the colleges are supposed to prove that they are having good infrastructure, good faculty. So the quality faculty and the quality improvement, this particular term will not be a buzzword only, it will be in practice. Then approximately 48 मार्गदर्शक. अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 2 तरीके की स्कीम सरकार ने चलाई हुई है, एक मार्गदर्शक स्कीम और एक मार्गदर्शन स्कीम, जिसमें मार्गदर्शक स्कीम के माध्यम से 48 लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं. ये रिपोर्ट पुरानी है बट स्टिल उस समय के हिसाब से 48 मार्गदर्शक को प्रोवाइड ने अपने मार्गदर्शक, दैट इज अ काइंड ऑफ एक इंस्ट्रक्शन की तरह हम देंगे, तो मार्गदर्शक वो हमारे पाथवे को बताएंगे कि आपको अगर NBA कराना है तो वो हमारे पैटर्न की तरह कैसे काम कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे वो मार्गदर्शन देंगे. तो मार्गदर्शक स्कीम के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो NBA के लिए अप्लाई करेंगे. 11 इंस्टीट्यूशंस वर सेलेक्टेड अंडर द मार्गदर्शन स्कीम. तो मार्गदर्शक हमारे अपने टीचर्स, हमारे अपने जो ट्रेंड या एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो होंगे और इंस्टीट्यूशंस मार्गदर्शन स्कीम के तहत अपने कॉलेज को रजिस्टर करा सकते हैं. अब मैं फैकल्टी के इंटरेस्ट की बात थोड़ी सी बताऊंगा और ये इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत अच्छी बात है जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं. हमारे यहाँ जितना भी कहा जाता है जो MBA और जो इस तरीके के मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो केस स्टडी बेस्ड टीचिंग होगी. हम जो पेडागोगी की बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो है, बट साथ में जब हम पेडागोगी की बात करेंगे तो IIM अहमदाबाद ने केस सेंटर रन कर रहा है. ये अगर फैकल्टीज को नहीं मालूम है तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं केसेस. दिस इज वन गुड थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद द फैकल्टी ग्रुप and the institutions also. Institutions can have the repository of the case studies if they are, the faculties are registered for that. So IIM Ahmedabad established a case center in April 2014 with a mandate to support case writing, manage the distribution of IIMA cases. That is, अब ये एक थोड़ा सा इनका लिमिटेशन है कि वो IIM अहमदाबाद के जो केसेस लिखे हुए उसको डेवलप करेंगे, मतलब उसको मैनेज और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एंड प्रमोट केस टीचिंग. तो उसके लिए अब धीरे धीरे करके वो लोग वर्कशॉप भी कंडक्ट करा रहे हैं और जो इस तरीके की वर्कशॉप्स है उसमें जाके फैकल्टी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और जो सर्विसेज ऑफर्ड हैं वो प्रोवाइडिंग केस राइटिंग ऑफ
and editorial assistance, providing funds for authors to develop cases. वो लोग funds provide कराएंगे, managing case registration and distribution through various distribution partners, administering sales of IMA sale cases. मतलब इस तरह की initiatives लिए गए हैं जिसके माध्यम से चीजें और बेहतर होंगी. Then what are the initiatives by IMA? अभी हम सोच रहे थे कि assessment कैसे होगा. ऑनलाइन हमने पढ़ा तो दिया, अब assessment की बात आती है. हम टीचिंग तो कर सकते हैं लेकिन असेसमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए आप अपने घर बैठे रहे, आपका असेसमेंट हो जाएगा. आपके पास केवल इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वेबकैम होना चाहिए और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो अप्लाई करते हैं. तो अगर एक नया इनोवेशन है ये इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के केस में खासकर अगर हम देखें तो हमारे जो छात्र हैं वो आईमा एक बॉडी होती है, दैट्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो मैट टेस्ट कंडक्ट कराती है, मैट का टेस्ट कंडक्ट कराती है. तो मैट का हेलो, तो जो मैट का टेस्ट है वो कंडक्ट होता है और इस बार आईमा ने वो टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट करवाया है. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रिमोट प्रॉक्टर्ड इंटरनेट बेस्ड टेस्ट. आईमा 3 तरीके के टेस्ट कंडक्ट करा सकती है. One is PBT, which is paper-based test. Second is CBT, which is computer-based test. And third one is IVT. IVT को आप अपने घर बैठे भी दे सकते हैं. Computer-based test के लिए आपको शायद जो उनके designated computer centers हैं वहाँ जाना होता है. So IVT मोड में आप अपने घर बैठे, अब ये है क्या, ये जो मैं आपको AI का सीन बता रहा था, AI को यूज करते हुए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये इसको टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा. तो और जो आपका ह्यूमन प्रॉक्टर्स हैं उसका रिप्लेस टेक्नोलॉजी करेगी. तो अभी आप देखिएगा धीरे धीरे सिनेरियो इतना बदल रहा है और उस बदलते सिनेरियो में हमें अपने को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. एक टेकिप करके कोर्स चल रहा है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सर्वेश जी मेरे को है 10 मिनट है, 5-7 मिनट. सर्वेश जी ओके. हेलो सर्वेश जी मेरे पास 5-7 मिनट है, मैं 5-7 मिनट में बाइंड या सर डेफिनेटली या टाइम काफी हो गया है. मैं भी नहीं चाह रहा कि लोगों को ज़्यादा एबॉर्डरेशंस हों. सो टेकिप में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अपनी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं वो खासकर, या जो NBA एक्रेडिटेड संस्थाएं हैं, वो इन जनरल सरकार ने अपनी अपनी जो डिमांड ड्रिवन और क्वालिटी बेस्ड चीज़ों को लेके और उसको संस्था स्टार्ट करा है और ये इंजीनियरिंग में ज़्यादा हो रहा है. देन वी हैव दी NITTR. सरकार ने कुछ NITTR, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये इस्टेब्लिश करे हैं और चेन्नई में है, भोपाल में है, चंडीगढ़ में है. इस तरीके के रिसोर्सेज ये सेंटर्स डेवलप करे हैं और इस सेंटर को जो डेवलप करके थ्रू आउट इंडिया, ये इस सेंटर को डेवलप करके उनके माध्यम से टीचर्स को पढ़ाया जाएगा. अभी AICT ने एक चीज और करी है कि जो हमारे यंग टीचर्स हैं उनके लिए NITTR के कोर्सेज मस्ट हो जाएंगे. अगर हम इस तरीके की चीज नहीं करेंगे तो शायद उनका अप्रूवल भी ना हो पाए. तो टीचर्स को दे हैव टू बी ऑन देयर टोज. AICT इज डूइंग एवरी एफर्ट और हमारे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और इन सब के लिए उसे ये सब चीजें करनी है, अदरवाइज आगे जाके उनको दिक्कत आने वाली है. तो जितने NITTR के कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री, सब सेक्टर एंड द कम्युनिटी एट लार्ज, उनमें सारे पॉपुलर होंगे. अब मैं आपको बताता हूँ स्वयं की बात जो मैं आपको पहले बता रहा था. स्वयं अपने आप में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है. मैंने खुद एक कोर्स करा और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो कोर्स करके, क्योंकि इसमें ऑनलाइन असेसमेंट होता था, ऑनलाइन असाइनमेंट भेजने होते थे, आपको वीडियोस देखने होते हैं और शायद कुछ लोगों ने कोर्सेज वो करे होंगे. अगर आप नहीं करे हैं तो अपने को रजिस्टर करा लीजिएगा. इट्स ए फ्री कोर्स. लेकिन अगर आप उसको आप सर्टिफिकेट लेंगे तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको वो चीज़ें करनी होंगी. आपको उसका 1000-1100 रुपया कोई अमाउंट होता है. वो इट माइट चेंज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द MOOC प्रोवाइडर वो कितना चार्ज कर रहे हैं. और इट इज़ जस्ट फॉर फ्री इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग. सो इफ़ यू फ्लेयर ऑफ लर्निंग, इसमें 2 तरीके के कोर्सेज हैं, मैं हल्का सा बताऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे. इसमें 2 तरीके के कोर्सेज हैं. इसमें एक कन्वेंशनल कोर्सेज जो हमारे अपने सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज हैं उनका संबंध में है और साथ में हमारे सेल्फ बेस्ड कोर्सेज हैं. जैसे अगर मैं कहूँ तो क्रिटिकल थिंकिंग या डिज़ाइन थिंकिंग
या डिज़ाइन स्किल्स, इन सब के ऊपर जो कोर्स हैं वो हमारे सेल्फ पेस्ड कोर्स हैं, जो कोई भी फैकल्टी कहीं से भी लॉन्च कर सकता है, जो कन्वेंशनल कोर्सेज हैं, जो हमारे कोर्स रिलेटेड हैं। AICTE ने एक और चीज़ करी है कि जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है, सरकार ने जो अभी हमारे यहाँ मॉडल करिकुलम लगाया है, दैट इज़ CBCS, दैट इज़ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो हमारा जो क्रेडिट सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, और जितने MBA के प्रोग्राम और जितने हमारे ऐसे प्रोग्राम हैं उसमें ये क्रेडिट ट्रांसफ़र की भी सरकार ने फैसिलिटी दी है। अगर आप MHRD की डायरेक्टिव के हिसाब से जाएंगे तो AICTE कहता है कि अभी 20% कोर्सेज अगर आप करते हो तो हम 20% कोर्सेज का क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने स्वयं पे कोई कोर्स करा, आप उसका क्रेडिट ट्रांसफ़र में ऑप्शन आएगा, आप क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में क्या होता है कि आप अपने टीवी के माध्यम से अपने घर बैठे 4 घंटे का एक प्रोग्राम आता है, वो 5 बार रिपीट होता है, और वो जो NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT इन सब के प्रोग्राम्स के माध्यम से वो 32 चैनल दिखाते हैं स्वयं प्रभा में। डिजिटल कंटेंट एक्सेस करने के लिए या हमारे फैकल्टी के लिए, बहुत इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, आई थिंक मोस्टली हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को यूज भी कर रहे होंगे। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक पोर्टल है जिसके माध्यम से जो प्रोजेक्ट है वो आपका वर्चुअल रिपोजिटरी है, जिसमें हमारे अपना आप जो चीज़ों को सर्च कर सकते हो, ठीक है। देन EPG पाठशाला में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोवाइडिंग फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड कंटेंट्स, ये कंटेंट्स आपको प्रोवाइड होगा। देन वी हैव शोध गंगा मेरे ख्याल से काफ़ी हमारे जो अपने टीचर्स हैं उन्होंने देखा होगा। शोध गंगा इज ए रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। तो जितने हमारे अपने टीचर्स हैं, अगर वो नॉलेज लेना चाहते हैं और हमारे अपने इंडियन थीसिस को वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो दे कैन एक्सेस एंड डाउनलोड ऑल्सो। They have to create one account and accordingly they can go for that. Then eShodh Sindhu अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे अपने लोग हैं, वो उसमें 15,000 करोड़ पीयर रिव्यू जर्नल्स एंड नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन एंड फैक्चुअल डेटाबेस है, और बहुत सारे पब्लिशर्स उसके अंदर कनेक्टेड हैं। हमारे अपने कॉलेज को 2F और 12B के अंडर में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज पर द UGC एक्ट। That is the basic criteria that should be there. Otherwise आप अपेयर नहीं कर पाएंगे। eShodh Sindhu की फैसिलिटी लेने के लिए आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आप 2F और 12B में रजिस्टर्ड। एक्सीलरेटेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अगर हम देखें तो eYantra है, FOSSEE है। FOSSEE अपने आप में मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि कुछ हमारे यहाँ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मार्केट से हम खरीद के लाते हैं। तो ये फ्री एंड लिबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, FOSSEE। देन वी हैव स्पोकन ट्यूटोरियल। आई थिंक अगर MBA के क्लासेस अपने यहाँ चल रहे हैं तो बहुत लोगों ने स्पोकन ट्यूटोरियल पे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया होगा जो हमारे यहाँ के छात्र हैं। तो अगर स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए रजिस्ट्रेशन अगर हैं तो हम लोग उसके माध्यम से हम स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए कम्युनिटी भी बनी हुई है, और उसके रजिस्ट्रेशन फोरम्स के माध्यम से हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज चल रही हैं, बट हम उसमें से कितना ले पाते हैं, कितना कर पाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, हमारे अपनी फैकल्टी, सभी कुछ एक चीज़ नहीं होती, हमारा अपना सभी कुछ होगा। हम उसका समेकित रूप देखेंगे तभी एक काम चल पाएगा, नहीं तो हमारे आगे समस्याएं बन जाएंगी। एक वर्चुअल लैब की फैसिलिटी है जो बहुत अच्छी स्टार्ट करी है AICTE ने और मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ने इनफैक्ट। तो वर्चुअल लैब का बेसिक मतलब है कि आप अपने घर बैठे रिमोटली उस लैब को एक्सपीरियंस कर सकते हैं सैमुलेशन के माध्यम से। तो आपको लैब क्रिएट नहीं करनी है, लैब दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सब उसका है नहीं, लेकिन अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ पैक्ट हो जाता है तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या IITs की लैब को भी वो विटनेस कर सकते हैं रिमोटली। तो जैसे हम रोबोटिक्स की बात करते हैं, हम मेडिकल में अगर रोबोटिक्स की बात करते हैं तो मेडिकल में भी आजकल रोबोट्स के माध्यम से ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ वर्चुअल लैब्स के बारे में सोचा गया है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी इक्विपमेंट जो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, कभी देख भी नहीं सकते थे, हम उसको वर्चुअली उसको रियल देख सकते हैं। जैसे हम कॉलेज का वर्चुअल टूर बनाते हैं और
एक पूरा टूर बना के हम उसको अपलोड भी कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। एक तरीके से ये वही समझिए कि वर्चुअल लैब आप देख सकते हैं और वहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के लिए माध्यम से क्या है कि हम अगर एक ERP डेवलप करेंगे, तो प्रोजेक्ट समर्थ एक उन्होंने सरकार ने चलाया है जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का है, तो जो स्टूडेंट डेवलपमेंट लाइफ से SDLC कहलाता है, तो वो आपका एक ERP प्रोजेक्ट है जिसमें ये ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड रोबस्ट सिक्योर और स्केलेबल है। अब हम इसमें दो चीजें और कहेंगे, एक विद्वान की फैसिलिटी दी हुई है और एक शोध शुद्धि की उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है। विद्वान इज द प्रीमियर डेटाबेस ऑफ profiles of scientific researchers and other faculty members working at leading academic institutions and other R&D organizations। तो हाँ, अगर कोई एक जो हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं या एक ऐसी जगह जहाँ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने विद्वान की फैसिलिटी दी है जो R&D ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं, और विद्वान की फैसिलिटी देके वो अपने अपने पब्लिकेशंस को वहाँ दिखा सकते हैं और वो आपको लगातार सपोर्ट कर सकते हैं। देन शोध शुद्धि का मतलब है कि हमारे यहाँ अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ कट कॉपी पेस्ट बहुत होता था। जितनी हमारी रिसर्च थीसिस हैं, जितनी हमारी और पेपर राइटिंग है, उसमें कट कॉपी पेस्ट बहुत होता था। या कॉपी पेस्ट की बात हम करें, कट नहीं कहना चाहिए, कॉपी पेस्ट की बात हुआ करती थी। तो प्लैगरिज्म डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, तो PDS कहलाता है, प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और शोध शुद्धि अगर हमारे अपने जो संस्थाएं हैं उनको जो हमारे अपने शोध शुद्धि के माध्यम से उसको ऐसा पॉसिबल है, प्लैगरिज्म का हम कर सकते हैं। अब ये जो फैसिलिटी है वो भी इंस्टीट्यूशंस को मिली हुई है और वो सरकार से आपको उसका वो लेना पड़ेगा पासवर्ड। नाउ दिस फिनिशेस माय सेकंड पार्ट एंड आई विल क्विकली कम बैक टू थर्ड पार्ट एंड आई विल फिनिश अप फास्ट बिकॉज देयर आर just few slides which I'll discuss, and with this I will end up my third part and will finish my talk because I have already taken ample time. Part 3 talks of the personal action plan, that is the 5 practices using technology for enhancing teaching and learning. I'll discuss mega trends, what are the different trends in the industry today, attributes that employees look for, and what are the skills needed for the future. The 5 practices using technology for enhancing teaching and learning include they are prepare an institutional policy for technology for teaching and learning. हमें एक हमारे जो institutions हैं, अभी कोरोना काल चल रहा है, हमने देखा है कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग पॉलिसी है उसको फ्रेम आउट करना होगा, और जो अब नए सिनेरियो में टीचिंग लर्निंग फिलॉसफी देखना चाहिए हमें, और हमें कंटेंट डेवलप करना चाहिए। तो जो पहली चीज़ है, हमें तो पहले एक इंस्टीट्यूशन पॉलिसी बनानी चाहिए टीचिंग लर्निंग के लिए। दूसरी चीज़, हमारे इंस्टीट्यूशन को एक जो वेबसाइट है एज ए लर्निंग रिसोर्स होना चाहिए कंटेंट के लिए। देन मेक ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ करिकुलम। ये जो ऑनलाइन टीचिंग है और लर्निंग है वो करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट बना देना चाहिए, बिकॉज अभी इन द वेक ऑफ द सिनेरियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कोरोना हमने देखा कि कुछ टीचर्स टेक सेवी नहीं थे। अगर हम करिकुलम का पार्ट बना देंगे तो उनके लिए एक मजबूरी बन जाएगी, और कुछ हमारे छात्र भी ऐसे थे, उनकी तमाम समस्याएं हैं वो बाद में सॉल्व करी जा सकती हैं, उनको 1-to-1 बेसिस पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो शायद इनिशिएटिव लेने से हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। डेवलप मोडेलिटीज फॉर असेसमेंट एंड स्टार्ट यूजिंग इट ग्रेजुअली। हमें मोडेलिटीज असेसमेंट की करनी होंगी और हम उसको ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको बताया अभी रिमोट प्रॉक्टर्ड एग्जाम होंगे, क्या हम वो टेक्नोलॉजी अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। और अगर वो नहीं कर सकते तो हम असेसमेंट के लिए कौन सा दूसरा तरीका अपना सकते हैं जो हमारे लिए सूटेबल हो, मुफीद हो, जिसे हम कहते हैं। देन पब्लिश बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग एंड लर्निंग पीरियडिकली। ये हम कर सकते हैं जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। देखिए, सरकार हमेशा ये कहती है आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को हमारे अपनी वेबसाइट पे डालें, हमारी अपनी साथ शेयर करें, जिससे कि AICTE को भी ये पता लगे कि आपकी ये बेस्ट प्रैक्टिस है, और हमारे टीचर्स क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, छात्र क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं। तो पब्लिश बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड टीचिंग एंड लर्निंग पीरियडिकली, हमें पीरियडिकली अपडेट करना चाहिए। The mega trends, students will work in peer-to-peer network
और ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओपन एंड स्ट्रक्चरली लिक्विड। ये एक नया ट्रेंड है जो होगा, हम बात कर रहे हैं कि जो विल वर्क पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओपन एंड स्ट्रक्चरली लिक्विड। मतलब ये कहीं ना कहीं हम जो अभी हम एक किताब में पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट टेकिंग अ मिनट फॉर दिस। एक किताब थी एलन फ्राइडमैन ने लिखी, द वर्ल्ड इज फ्लैट। तो अभी वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट। द फोर्थ क्लास एम्प्लॉय कैन डायरेक्टली टॉक टू चेयरमैन बाय विद द हेल्प ऑफ द ईमेल। He or she can shoot up the mail. So it is not the top bottom approach, it is the bottom up approach which is taking place. So we say like this and we start doing, then things will start happening. So they will be hired and laid off on demand or work as free agents. आजकल देखते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। वो कहते हैं हम फ्रीलांसर हैं। ये फ्री एजेंट जो शब्द है वो फ्रीलांसर वाला काम है। आप काम करिए और पैसा लीजिएगा। They will be hired and laid off, मतलब उनको हायर करा जाएगा और उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा as per the need and demand of the department, or they will be working like a free agents. They will have to compete for employment on a global market. अभी world has become a global village, as I was discussing in one of the slides. जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, लेकिन वो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें चैलेंजेस नए नए तरीके के आएंगे। हमें कुछ ऐसी स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा कि हम ग्लोबली अपने को फिट कर पाएं हर जगह। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रूल व्हिच आई ऑलवेज रिमेंबर। और हम अगर अपने को मार्केट के हिसाब से फिट नहीं कर पाए तो विल बी सून आउट ऑफ द मार्केट। न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, सच एज नॉन लिनियर थिंकिंग, सोशल एंड इंटरकल्चरल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। Attributes that employer look for. Again, from AICT handbook, I have taken this. What are the attributes which are required? Good appearance, manners, creatives, dependable, trustworthy. ये सब तो हम लोग जानते हैं, बट जो स्किल सेट है वो क्या होना चाहिए आज के ज़माने में सक्सेसफुल होने के लिए? वो है आपका प्लानिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में इंट्राप्रेन्योरशिप। So entrepreneurship भी होना चाहिए, that is you own the organization, as if you own the organization। हमें वो वाला कंसेप्ट भी होना चाहिए। हमारे अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और आईसीटी स्किल्स होनी चाहिए। सो आईसीटी स्किल आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी हो गई है। अब what are the skills needed for the future? Are sense making, social intelligence, novel and adaptive thinking, cross cultural competency। हम एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो उस देश की हमें तमाम ऐसी बातें मालूम होना चाहिए जिससे हम क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी हमें अगर नहीं है तो हमें आगे जाके समस्या आएगी, चाहे वो बिहेवियरल इश्यूज हो, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने मार्केटिंग की किताब पढ़ी थी फिलिप कॉटलर की, तो उसमें एक जगह लिखा था कि जो हम जापान में I was listening to one of the interviews. There, Japanese people are very shy natured and they are self-restraining. अभी हम लोग अगर उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो शायद वो हमसे उतना इंटरेक्ट ना करें, लेकिन जब वो इंडिया आएंगे तो वो हमसे पूरा इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हमें उनकी फीलिंग को समझना होगा और उस हिसाब से क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग, न्यू मीडिया लिटरेसी, ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी, सारी जो एरियाज हैं वो समझने होंगे। वर्चुअल कोलैबोरेशन समझना होगा, डिज़ाइन माइंडसेट, दैट इज डिज़ाइन थिंकिंग जो हम बात करते हैं वो हमें समझना होगा, और इन सब के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। मैं इस जो लास्ट में एक कोट है उसके साथ मैं खत्म करना चाहूँगा। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू को क्रिएट इट, दैट इज वी हैव गॉट टू कोलैबोरेट विद अदर्स एंड देन वी हैव टू स्टार्ट। मैं हमारे एक कोट है जो एक आपने शायद सुना भी हो, देख तू वक्त की दीवारों से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। मैं इस लाइन के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और सर्वेश जी को और सारे ऑडियंस को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने शायद पेशेंटफुल हियरिंग करी। एंड आई वाज टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू हैव गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड दे हैव बीन गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ये कोरोना और जो ये है ये चीज़ें आई हैं चली जाएंगी, लेकिन जो हम लोगों का साथ है वो बना रहे, हमारे परिवार, हमारे सोसाइटी और सब यहीं रहें।
2019 से 20 में आए हैं, 20 से 21 में जाएंगे, इस ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और जो भी मैं अगर कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन में मैं बताना चाहता था, कुछ छूट गया हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I think Ranjit will join soon. Hello. Hello. Hold on around 1 minute. Okay, please go. Very grateful to you, sir. The session Yes. was very informative and you shared excellent. I'm not audible actually. Ma'am, you are not audible. हाँ, आप बताइए. Yeah, I think. Sir, the session was very informative and you shared excellent knowledge with us. And now we have some questions on the. May I ask, sir? The voice is not audible. Yeah. Yes. Okay, ma'am. I think you are not audible. So हाँ, बताइए. that's right. Thank you, Dr. Saab. Dr. Saab, we have some queries. So हाँ, I बताइए. would like to take one by one. Dr. Shyam Kumar Bajpayee ji, they want to ask, what changes will take place aims for education in post-COVID world? What changes will take place in aims of education in post-COVID world? In post-COVID world. Okay. After, yeah. हाँ, देखिए पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं तो जो ये इस समय क्राइसिस चल रही है वो केवल अभी 1-8 साल की है. इट इज नॉट गोइंग टू स्टे. एक तो हमें अपने पर्सनल फ्रंट पे ये करना है कि अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है और ऐसी प्रैक्टिसेस को, जैसे हमारे यहाँ जो भारत की परंपरा रही है नमस्कार करने की, उसे दुनिया ने सराहा. तो एक तो हमें वो फॉलो करना है अपने को बचाने के लिए. अब रही एजुकेशन की बात, तो जो एजुकेशन है उसको पोस्ट कोविड सिनेरियो में अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं वो नीडेड हैं. और जो अभी हमने सेंस मेकिंग और जितनी सारी स्किल्स बताई हैं वो हमारी बहुत ज़रूरी हैं. अगर मैं इसे 2 पर्सपेक्टिव में बात करूंगा एजुकेशन को, अगर 2 क्या 3 पर्सपेक्टिव में बात करूंगा. हमारी एजुकेशन जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो 3 खंभों पे टिकी हुई है. एक तो हमारे अपने शिक्षक, एक छात्र, शिक्षक और छात्र तो मस्ट है. तीसरा हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके माध्यम से हम वो एजुकेशन को प्रोवाइड करा पा रहे हैं. तीनों को बहुत बड़ा काम करना है. और बहुत बड़ा काम क्या करना है उसमें, एक हमें जो प्रोसेसेस हैं अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगी तब समस्या आएगी. तो वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए काम हो गया. अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मुझे टेक सेवी बनना है. मुझे कंटेंट ऐसा डेवलप करना है जो बच्चों के लिए हितकारी हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो. ई कंटेंट डेवलप करना है. और जैसा मैंने बताया था कि हमें अपने वेबसाइट्स इस तरीके की बनानी चाहिए जो डायनेमिक वेबसाइट हो और जो उसको आगे ले जा सके. कोई भी आए और हमारे अपने टीचर्स के लेक्चर्स वीडियोस देख सके. अगर हम उसको एक एक्सेसिबल सबके लिए नहीं बनाना चाहते तो हम एक लॉगिन आईडी क्रिएट कर दें, पासवर्ड दे दें और बच्चा अपने हिसाब से, जो छात्र है वो अपने हिसाब से लॉगिन आईडी से पासवर्ड लेके
एक पेरेंट का डोमेन भी बना सकते हैं, पेरेंट का एक राइट्स दे सकते हैं कि वो पेरेंट्स ये देख सकें, एक ईआरपी सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे हमारा अपने पेरेंट्स देख सकें कि मेरे बच्चे की अटेंडेंस कितनी थी और वो सब सिस्टम देख सकें। तो ये जो हमारा जो शिक्षा का वो है क्षेत्र, वो कोविड वर्ल्ड के हिसाब से पोस्ट कोविड में खासकर उस सिनेरियो में जो ई कंटेंट है वो डेवलप होना चाहिए। शिक्षकों को ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए जो सर्वहितकारी हों और केवल एक छात्र के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी कम्युनिटी के लिए छात्र कम्युनिटी। Have I answered the question well, sir? और कोई क्वेरी तो नहीं है इसके अलावा अभी उसमें? Yeah, I have one more question, sir. From Prasthant, he want to ask, how can rural India to reach? Voice is actually आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट लगाओ, उसमें वॉइस। Am I audible, sir? जी सर। Yeah. Prasthant want to ask you, how can rural India to reach education 4.0 because there is lack of accessibility technology? This is one point which I have discussed. Actually, the accessibility of technology will only take place if you have something. If you don't have, that is a challenge. That is the greatest challenge that we are facing. अगर हम कहें, अभी सरकार ने हमसे कहा और सारे कॉलेजेस में आदेश गया कि मोबाइल्स बैन करा दीजिएगा। बैन हमने भी करा दिए, स्मार्टफोन्स बैन करा दीजिएगा। अभी आप कोरोना वर्ल्ड में बात कर रहे हो कि मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ाई होगी। मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मेरी एक भतीजी है, वो उसने भी क्लास की पढ़ाई शुरू नहीं करी है। वो पहली बार क्लास में जाएगी और इससे पहले कोरोना हो गया, कोरोना आ गया इनफैक्ट। तो कोरोना आ गया, अभी उसको सारा होमवर्क, अभी नाउ सी द सिचुएशन वेयर शी हैज नॉट इवन अटेंडेड अ सिंगल डे ऑफ क्लास। अभी उसको मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। नाउ शी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू न्यू टेक्नोलॉजी और मोबाइल के ग्रुप के माध्यम से वो वीडियो देख के उसको होमवर्क करना, उसको पढ़ना और ये सब तमाम चीज कर रही थी वो। तो जब वो होमवर्क कर रही थी तो उसने ये कहा कि ये तो खेलने के लिए होता है और पढ़ने के लिए नहीं होता। तो उसको इंप्रेशन ये था कि मोबाइल से तो हम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं और ये कहाँ एक हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी अपनी एक ऐसी चीजें हैं जो हमें उसको करना ही होगा और हमें उसके हिसाब से आगे बढ़ना ही होगा। ये टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम कहें तो सरकार एक बेटर फैसिलिटी दे सकती है। दे कैन गिव लोन ऑन इजी टर्म्स डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट। The student can be granted loan for this, but we cannot subsidize this, or might be the government can subsidize this if the government wishes so. That's the situation. Yeah. Due to time constraint, actually there are number of queries are here, but we are not able to take them, to entertain them. So we come on the vote of thanks. I would start with this quote. Gratitude. Yeah, they will send through email. In case there are some questions, आप please मेरे को बता दीजिएगा. Please share my email, Sarvesh ji. In case there are any queries, I'll be happy to serve those better. Yeah, if someone have any query, so he can send you the mail. So, yes. Gratitude is the most beautiful way to express all that is in your heart. On behalf of entire Vivek family, I would like to extend my gratitude to our guest speaker, Professor Dr. Vivek Sharma sir. We thank you wholeheartedly as you have graced us by accepting our invitation in a very short period. I'm sure that the lecture has influenced everyone very effectively. Sir, as you made us understand all the hidden economic mechanism in a very simplified manner. Sir, you also highlighted the essence of skill development of the professionals to get the highly respectable jobs in the market. Sir, you explained everything in very detail. Sir, to be very honest, this was really a nice and knowledgeable lecture. We hope that in coming future, we will continue to benefit from your expertise and knowledge. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. And thanks to the thanks from the core of my heart. Yeah, thanks from the core of my heart for organizing such a wonderful session.
and it was nicely coordinated. And say my thanks to the managing committee, the president, vice president, secretary, or whatever the post you are having in the college. Please convey my sincere thanks from the core of my heart. Sure, sir, sure. We are also thankful. We are also thankful to our visionary college management, Chairman Honorable Sri Amit Goyal sir, Secretary Honorable Sri Deepak Mittal sir, Treasurer Honorable Sri Dharmendra Agrawal sir, as your presence inspire us to do something good and productive. We are also thankful to you for providing us the best teaching learning platform. We have our sincere gratitude to our Director Administration, respected Dr. O.P. Gupta sir, as you always inspire us to do more constructive. We are very thankful to all the principals and HODs for giving us their valuable time. We are also thankful to Dr. Hitesh Sharma sir, coordinator of the college, for his valuable support. I also convey my special thanks to Engineer Anuj Sharma sir for his technical support. I thank to Team DBS, who collectively worked hard to make this webinar a successful one. At last, but not at least, we are very, very thankful to all the participants who attended this webinar so patiently. So with these kind words, we move to end today's webinar. Thank you very much. Thank you.